then we'll go ahead for the next and new topics over here. Clear? So कल हमने डिस्कस किया था some basic concepts in chemistry, जिसके अंदर सबसे पहले देखा हमने what is nature of chemistry, जिसके अंदर what is chemistry and how it is occupied our daily routine life. That is what we have discussed in nature of chemistry. जैसा थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया यार what is matter. So we have seen the definition of matter and then furthermore हम आगे चले और matter के अंदर के definition थोड़ा टॉपिक हमने डिस्कस किया, matter के types हमने डिस्कस किए. तो वीएस इंडस की ये जो मैटर की अगर हम बात करते हैं तो मैटर अगेन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज यू कैन से प्योर मैटर एंड मिक्सचर. देन वी हैव मिक्सचर इज अगेन क्लासिफाइड इनटू होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस. और हम जब प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं तो प्योर सब्सटेंस इज अगेन क्लासिफाइड इनटू यू कैन से एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. देन एलिमेंट इज अगेन क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज, दैट इज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड. ये हमने वहां पे डिस्कस किया था एंड उसके बाद हमने कल डिस्कस किए थे दैट इज यू कैन से there are three states of matter, solid, liquid and KCS1. Three states of matter हमने कल डिस्कस किए थे और फिर हमने उसके अंदर डिस्कस किया था properties. There are two types of properties related with the substance. Number one is a physical property and number two is a chemical property. ये हमने डिस्कस किया था और फिर हमने देखा था कि किसी भी मैटर को अगर हमें मेजर करना है तो we have to measure the we should have some units for that because in order to measure any physical quantity we need to have the unit. So कल हमने ये भी देखा कि there was a conference held, that is SI international कहा जाता है, system का international conference कहा जाता है, जिसके अंदर scientists of the whole world sat together and formulated some rules and they decided rules and regulation for the measurement of the matter, that is called a unit. Unit क्या होता है? That is arbitrarily decided and universally accepted quantity is called as a unit. Arbitrarily decided and universally accepted quantity is known as unit. These units are of two types, 7 fundamental units and derived units. So 7 fundamental units are very fundamental हमें देखा है because they doesn't depend upon any other quantity for its units and that's why they are called as you can say 7 fundamental units. So that is mass, then length, time, temperature, amount of substance, electric current and luminous intensity. These are the 7 fundamental units और वो किस यूनिट में मेजर किया जाते हैं वो भी हमने उसके अंदर डिस्कस किया. फिर उसके बाद जैसे हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं हमने इसके अंदर डिस्कस किया दैट इज यू कैन से derived units. So derived units are the units which depends upon 7 fundamental units to depends upon that these are called derived units. So by multiplying and dividing 7 fundamental units we can obtain a derived units. Area, volume, force, acceleration, like these are the different examples what we have seen. These comes under this one. So that is the part what we have seen yesterday. यहाँ तक हमने part discuss किया था. तो nature of chemistry, branches of chemistry, matter, its classification, states of matter, properties and units. These are the topic what we have covered yesterday only. और आज की तारीख में हम लोग कुछ नए topic आप discuss करने वाले हैं. बहुत ही बढ़िया topic हम discuss करने वाले हैं और अलग concepts हैं. कल जिस प्रॉपर्टी की हमने बात की थी, how these properties can be measured. So we have to discuss some measurable properties, खास करके physical properties. Starting. So we have to discuss measurable physical properties of the matter. That is what we discuss today. So let's move to measurable physical properties of the matter, isn't it? So उसकी तरफ चलते हैं लोग. So किसी भी मैटर के साथ जो प्रॉपर्टी हम लोग मेजर कर सकते हैं, जितने प्रॉपर्टी जस्ट तो वो सारे हमें इसके अंदर डिस्कस करने हैं. So we have to discuss them. So we have to see the measurable physical properties. So number one is you can say mass or versus you can say weight. Yeah. So mass or weight. This is the first measurable physical property what we are going to discuss. What is this? मतलब किसी भी matter की बात करते हैं. We have seen the matter. Matter is anything which occupies space and has the mass. Anything which occupies space and has the mass is called as matter and its presence can be detected with our 5 senses. That is the matter. और इस मैटर को अगर मेजर करना है तो उसके लिए यूनिट था. तो उसमें से कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो हम मेजर कर सकते हैं. तो उसमें से पहला प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे दैट इज मास, व्हिच इज नॉर्मली हम लोग वेट भी कहते हैं लेकिन दोनों के अंदर 100% डिफरेंस है. मतलब मास वर्सेस वेट अगर हम डिफाइन करेंगे तो 100% डिफरेंस है. तो पहले हम लोग मास की बात करते हैं. What is this mass? Mass is a quantitative property. It depends upon the quantity. It is the quantity of matter present in that substance is nothing but the mass.
So how much quantity of matter is present, that is indicated by mass. That is nothing but the mass. And mass is a very absolute property, and it's very pure property, which is related, very fundamental property, which is related with that substance, whatever the substance we have taken over here. उसके अपोजिट में हम लोग वेट की बात करते हैं. वेट इज नॉट दैट मच फंडामेंटल प्रॉपर्टी बिकॉज मास डू नॉट वेरी विद द टाइम एंड स्पेस. बट अगर हम इसकी बात करते हैं, वेट की बात करें, तो वेट वेरी विद द टाइम एंड स्पेस. तो उसके साथ बदल सकता है. मतलब कैसा है कि अभी ये पेन, यहाँ पे पेन, सो ये पेन का मास अलग होता है. हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मैटर इज प्रेजेंट इन दिस पेन, दैट इज कॉल्ड एज अ मास. सो मानो इसका मास, जनरली मास और वेट दोनों हम लोग केमिस्ट्री में एक तरीके से लेते हैं, बट फिजिक्स में डिफरेंशिएट करना है आपको. यहाँ पे लेते हैं, और मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम. किलोग्राम, ग्राम, इसमें हम लोग मेजर कर सकते हैं. सो मानो अगर इस पेन की बात करते हैं, तो दिस पेन इज 50 ग्राम का ये पेन अगर हमारे सामने है, तो 50 ग्राम इज मास ऑफ दिस पेन. इसका वेट अलग हो सकता है. अभी पेन मैंने जिस पोजीशन पे पकड़ा है वहां पे वेट अलग है, बिकॉज उसके ऊपर एक्ट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसके अंदर ऐड होता है जो मास के अंदर, तब जाके वेट बनता है. अगर इस पेन को मैं ऊपर यहाँ तक उठाता हूँ, तो शायद उसका वेट अलग होगा. तो वेट डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ द पेन, एंड दैट्स व्हाई, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो कंसीडर्ड इन दिस वन, वेट के अंदर. सो देयर इज अ बिग डिफरेंस. मतलब दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास. मास इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर व्हिच इज प्रेजेंट इन दैट सब्सटेंस, बल्क. अभी इसके अंदर कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर है वो नहीं बदलेगा. वो मैं यहाँ पकड़ू, इधर पकड़ू, कहीं भी पकड़ू, ये और कहीं लेके जाओ, स्पेस में भी लेके जाओ, तो ये मास नहीं बदलने वाला, बिकॉज दिस क्वांटिटी विल रिमेन द सेम. बट वेट बदल सकता है एज पर द पोजीशन एंड स्पेस, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स हैज टू एक्ट इन दैट. तो वो उस हिसाब से उसके अंदर बदल सकता है. सो दिस इज व्हाट वी कैन से. सो मास is a quantity of matter which is present in bulk in a given substance is called as a mass, and mass is measured in kilograms. So this is kg. और हम जानते हैं 1 kg is equal to 1000 gram. This is also what we can say, 1000 gram इतना होता है. So this is the measurement of mass. So mass is measured in kilogram, which is a SI unit for this one, and CGS unit is, you can say, gram. So this is mass. दूसरी क्वांटिटी हम डिस्कस करते हैं, that is length. Okay, length. हर सब्सटेंस का, एवरी सब्सटेंस का अपना एक लेंथ है. जैसे कि इस पेन का अपना लेंथ है, लेंथ हाइट, व्हाट वी मेजर इट हियर. सो एवरी सब्सटेंस हैज द लेंथ, एंड दिस लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर. दैट इज, यू कैन से, मीटर इज अ एसआई यूनिट टू मेजर द लेंथ ऑफ द सब्सटेंस. उसे हम लोग सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं. सो जैसे कि मीटर इज अ एसआई यूनिट, और सेंटीमीटर इज अ यूनिट. उसके अलावा फिर पिकोमीटर, नैनोमीटर, देयर आर नंबर ऑफ कन्वर्जन्स ऑफ दिस यूनिट्स हो गया. बट लेंथ ऑफ द सब्सटेंस, जैसे कि इस पेन का लेंथ है, सो मानो कि हम लोग मान सकते हैं 6 सेंटीमीटर उसका लेंथ है. वी कैन कन्वर्ट इट इन मीटर, वी कैन कन्वर्ट इट इन पिकोमीटर, वी कैन कन्वर्ट इट इन नैनोमीटर. मतलब वी कैन present this length in different units, and these are interconvertible. But the SI unit, जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट माना जाता है, that is nothing but, you can say, meter. So meter is the length. So every substance has the length, every matter has the length, every three-dimensional substance has the length, breadth, and height, and that length is measured in meter, or centimeter is a CGS unit, and so onwards. We can have a number of units, nanometer, picometer, वगैरह वगैरह. So this is what we can say. ये होता है उसके अंदर का दूसरा. तीसरी अगर क्वांटिटी की बात करते हैं, there is, you can say, volume. Volume name quantity. So there is a name called volume. हम जानते हैं every substance acquire the space, and that can be measured in volume. Specifically हम लोग ये जो वर्ड यूज करते हैं, जो कैन से स्पेशली गैसेस और लिक्विड की बात करते हैं, तो उस वॉल्यूम के फॉर्मेट में मेजर कर सकते हैं. जैसे कि से फॉर एग्जांपल हम लोग मार्केट में दूध लेने के लिए जाते हैं, तो हम कहते हैं कि 1 लीटर दूध चाहिए. सो 1 लीटर itself indicates the volume. लीटर itself indicates the volume. मतलब लीटर is the unit to measure the volume. Every 3-dimensional substance, दुनिया में सारे substances 3-dimensional होते हैं. 3-dimensional मतलब x axis, y axis and z axis, length, breadth and height. This is the 3 dimensions, है ना. x axis, y axis and z axis, 3 axis आप अच्छी तरह जानते हो, coordinate axis आपने देखे मैथ्स के अंदर और देखेंगे. So in that sense, every substance has the 3-dimensional existence, and if it has the 3-dimensional existence, it has the volume. So whatever the space acquired by that matter, that substance, is measured in the volume, and volume is a combination of length, breadth and height, you can say, in this sense. So that is the volume. So volume is measured in meter cube. So volume का जो unit होता है, this is nothing but the meter cube, because volume क्या होता है, length into breadth into height. ये तीनों का combination होता है, length, breadth and height, ये तीनों का combination होता है. So length is measured in meter, breadth is measured in meter, and height is also measured in meter. So it comes to the meter cube. So volume is measured in meter cube.
एट द सेम टाइम वॉल्यूम मेजर करने के लिए हमारे पास कई सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कई सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अभी आप लोग 11th स्टैंडर्ड में जा रहे हो तो जब लैब में जाएंगे, 10th के अंदर भी आप लोग लैब में जा चुके थे, अगर आपने सीरियसली सिंसियरली देखा होगा तो कई सारे इंस्ट्रूमेंट वहां पे रखे जाते हैं। आज आप जब 11th स्टैंडर्ड के अंदर लैब में, कॉलेजेस जब ओपन होंगे, आप लैब में जाएंगे तो वहां पे कुछ इंस्ट्रूमेंट देखेंगे आप, जहाँ पे मेजरिंग सिलेंडर होता है, देन पिपेट होता है, ब्यूरेट होता है, कोनिकल फ्लास्क होता है। सो दीज आर द इंस्ट्रूमेंट हम साइंटिफिकली यूज करते हैं। और डेली रूटीन लाइफ में भी हम लोग देखते हैं कि जैसे कि हमारे घर में मिल्क आता है तो वो मेजर करके दिया जाता है, ऑयल आता है तो वो मेजर करके दिया जाता है, जिसके लिए ये यूनिट्स यूज किए जाते हैं। दैट इज यू कैन से मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम। मीटर क्यूब को कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग सेंटीमीटर क्यूब, mm में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक दैट। तो देयर आर डिफरेंट यूनिट्स व्हाट वी कैन यूज फॉर दिस। सो डेसीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है, ml है, these are the different units what we can use for this volume. But volume is a very fundamental property every matter has, and whatever the two-dimensional space acquired by the matter is nothing but the volume. And this volume is measured in meter cube. Or there are some instrument by using which we can measure the volume of the substance. Cylinder, measuring cylinder, pipette, burette, conical flask, and so many. So that is what we can say. So this is a volume. Okay. Now, there is a fourth property called as density. Density. So let's go to the density. Density भी आप लोग 8, 9, 10 standards देखते आए हो. What is density? So we have seen the formula of density. Density is nothing but the mass upon volume. So density is equal to mass upon volume. So this is what we can say definition of density, जो आपने already 9, 10th में देखा हुआ है. So density is mass per unit volume is nothing but the density. Density definition ये ऐसा है, mass per unit volume is called as a density. So this is the mass and this is the volume. तो हम अच्छी तरह जानते हैं what should be the unit of this density. तो मास का यूनिट यहाँ पे रखिए, वॉल्यूम का यूनिट यहाँ पे रखिए, तो आपको डेंसिटी का यूनिट अपने आप मिल जाता है। सो मास का यूनिट हम ऊपर देखे, इसका यूनिट ऑफ मास इज इन केजी एंड वॉल्यूम का यूनिट जो है मीटर क्यूब। मीटर क्यूब, दिस इज द यूनिट फॉर मीटर। सो ये यूनिट मिल जाता है हम लोगों को। तो डेंसिटी का यूनिट बनता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और केजी पर मीटर क्यूब इज द यूनिट फॉर डेंसिटी। तो एवरी सब्सटेंस हैज द डेंसिटी. Density is mass per unit volume, that is called as density over here. And density का जो यूनिट है वो इनके यूनिट से निकाला जाता है. That's why density absolutely derived यूनिट आता है जो किसी ना किसी दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है. So mass का यूनिट रख दिया, वॉल्यूम का यूनिट रख दिया, तो kg per meter cube is a unit for density. So this is what we are density. Density का definition क्या है? Mass per unit volume is called as density. So that is what we are. So these are the properties. अभी इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज यू कैन से टेम्परेचर. सो फिफ्थ प्रॉपर्टी व्हिच इज टेम्परेचर. So it is again most important property of each and every matter. So what is this temperature? Temperature is denoted by T, and it is the measure of hotness or coldness of the body, of the matter. किसी भी matter का how it is hot or how it is cold, that is measured here in temperature form. For example, अभी हम जानते हैं कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 36 पॉइंट समथिंग डिग्री सेल्सियस है, और फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है. दोनों स्केल है, मतलब there are 3 different scales by which we can measure a temperature. That is, you can check degree Celsius. देखिए, so this is degree Celsius, then degree Fahrenheit, and you can say Kelvin. So this is, you can say, degree Celsius, degree Fahrenheit, and Kelvin. These are the 3 units जिसमें हम लोग मेजर कर सकते हैं, Celsius, Fahrenheit, and Kelvin. ऐसा यूनिट की अगर बात करते हैं तो Kelvin is a unit. तो यहाँ से आगे हम लोग टेम्परेचर जहाँ कहीं देखेगा, और कई सारे हमें न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं, तो उसके अंदर हम जो टेम्परेचर लेंगे, दैट टेम्परेचर हैज टू बी Kelvin. हम ये दोनों टेम्परेचर्स नहीं लेंगे, हम जनरली Kelvin यूज करेंगे. हमें भले ही वो दे सकते हैं डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में, बट विल कन्वर्ट इट इनटू Kelvin, और केल्विन में ही कन्वर्ट करना है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. नहीं, चलो कोई बात नहीं, टेम्परेचर का मैं अलग लिखता हूँ प्रॉपर्टी, बिकॉज वी हैव सी. देखिए, टेम्परेचर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना है, बिकॉज उसके अंदर एक फॉर्मूला आता है. सो these are the measurable properties of matter what we discuss, physical properties of the matter. Number 1 is, you can say, mass. Mass is the quantity of matter contents, that is called as mass. There is a difference between mass and weight. Mass never changes, it is a fundamental quantity, and weight changes with the position of the matter. So that's why mass is a bit different. That is measured in kilogram. Second is length. Every substance has length, breadth, and height, and that is measured in meter. That is what we can say. It's a SI.
volume, every substance acquires a three-dimensional space, and whatever the three-dimensional space acquired by the substance is nothing but the volume, and this volume is measured in meter cube, centimeter cube, in mm, like that. There is a density. Density का formula और definition ये है कि mass per unit volume is called as a density. Mass per unit volume. How much mass is present in a given volume is called as a density. So that is density. हम लोग कभी-कभी ऐसा जंगल में जाते हैं तो बोलते बहुत ही dense forest है. Dense forest मतलब क्या? Number of plants or number of trees per square centimeter area, per square meter area, per square kilometer area, like that. जितने ज्यादा plants होंगे उतना density ज्यादा है. जितना plants कम होंगे उतना density कम है. So इसीलिए हम लोग dense word ऐसे use करते हैं. तो in that sense, the density is mass upon volume. How much mass is present per volume is called density, and that is measured in kilogram per meter cube. This is the unit for that. And fifth one is a temperature, जो हमें थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना है. तो सारा ईयर्स करके टेम्परेचर को स्पेशली लेते हैं कि उसके अंदर कुछ फॉर्मूले आते हैं हमें लिखने. So the fifth property what we are discussing is nothing but the temperature, which is denoted by T. टेम्परेचर T से दिखाया जाता है. और टेम्परेचर की एक खासियत जैसे मैंने बताया कि there are three different scales. Number one, the degree Celsius. Number two is degree Fahrenheit, and number three is nothing but the डिग्री केल्विन. तीन स्केल यूज किया जाता है. केल्विन के बारे में डिग्री यूज नहीं किया जाता, जस्ट केल्विन कहा जाता है. मतलब केल्विन सिंपली अ टेम्परेचर. तो यहाँ पे डिग्री केल्विन बोलने की जरूरत नहीं है. जैसे यहाँ पे डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं, वैसे यहाँ पे सिर्फ केल्विन कहे तो भी चलता है, वही होता है. सो देयर आर डिफरेंट स्केल्स जिसके हम यूज करते हैं. नाउ टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द मैटर. किसी भी मैटर का हाउ हॉट इट इज और हाउ कोल्ड इट इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर. उसे टेम्परेचर. जैसे मैंने बताया कि ह्यूमन बॉडी को अगर हमें फील होता है तो हम चेक करते हैं कि हमें फीवर आया कि नहीं, लाइक दिस वन. या फिर थर्मामीटर होता है. हमारा सबसे पहला घर का थर्मामीटर ऐसा ही होता है. वी चेक इट कि यस आइदर आई एम फीलिंग फीवरिश और नॉट. सो अगर हमें लगता है कि नहीं बिट हॉट लग रहा है तो ट्रीटमेंट की जरूरत होती है. तो वी गो फॉर द मेडिकेशन टू द डॉक्टर एंड वी कंसल्ट देम. बट अगर वैसा नहीं है तो टेम्परेचर ये यूनिट है जो हमें हॉटनेस और कोल्डनेस मेजर करना है किसी भी मैटर का, और उसके लिए ये यूनिट्स हम लोग यूज करते हैं, मेजर करते हैं. आज की तारीख में जैसे मैंने बताया कि डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट आर ऑलमोस्ट आउटडेटेड and we are going to use only Kelvin. So whichever numericals we are going to solve in the future, any further chapters and all, these will be a purely will consider only a Kelvin scale, not of this degree Celsius and degree Fahrenheit. वो यूज भी नहीं करना है, बस पता होना है कि उतना होता है. ठीक है. और कोई भी थर्मामीटर की अगर बात करते हैं तो हमारे थर्मामीटर लेते हैं हम लोग, तो थर्मामीटर का सबसे लोअर पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस और अपर पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस. तो दिस इज द थर्मामीटर स्केल. किसी भी थर्मामीटर के इसके अंदर स्केल होता है. तो मान लो ये हमारा थर्मामीटर है. सो दिस इज द थर्मामीटर. यहाँ पे बल्ब होता है, यहाँ पे मर्क्यूरी होता है. तो यहाँ पे होगा 0 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे होगा 100 डिग्री सेल्सियस. इन बिटवीन काफी सारे होंगे लाइक दिस. दिस इज द थर्मामीटर. तो थर्मामीटर में लोअर स्केल होता है 0 डिग्री सेल्सियस और अपर स्केल होता है 100 डिग्री सेल्सियस. व्हाई इट इज? बिकॉज हम जानते हैं कि हमारे डेली रूटीन लाइफ में पानी का बहुत इंपॉर्टेंस है, वाटर. और 0 डिग्री सेल्सियस इज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर and 100 डिग्री सेल्सियस is a boiling point of water. और ये दोनों के स्केल में हम टेम्परेचर मेजर करते हैं मेनली. इसके आगे भी हम जा सकते हैं, कितना भी टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मली थर्मामीटर के ऊपर ये स्केल होता है जहाँ पे हम मेजर कर सकते हैं. और इसी को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं. भले हमारा टेम्परेचर थर्मामीटर हमें डिग्री सेल्सियस की क्यों ना बताता हो, हम उसे फ़ारेनहाइट में और हम उसे केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो देयर इज अ फार्मूला टू कन्वर्ट दैट. सो एक फार्मूला ऐसा है कि देयर इज अ डिग्री फ़ारेनहाइट. ओके, this is degree Fahrenheit is equal to 9/5 into degree Celsius plus 32. ऐसा है ये फॉर्मूला है. तो ये मैंने ब्रैकेट कॉन्शियसली पुट किया है. अगर ब्रैकेट पुट नहीं करेंगे तो हम थोड़ा सा गलती कर देते हैं. कभी-कभी क्या होता है कि मैथ्स के रूल फिर हम फॉलो नहीं करते. अगर मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ तो कभी-कभी ऐसा होता है कि डिग्री सेल्सियस प्लस 32, तो सॉल्व करते समय मैथमेटिकली मिस्टेक करते हैं बच्चे, और इसलिए पहला 32 और ये डिग्री सेल्सियस को ऐड कर लेते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये गलत है. मैथ्स में पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है, फिर उसके बाद ब्रैकेट के बाहर की क्वांटिटी. दैट्स व्हाई आई पुट द ब्रैकेट. सो वी हैव टू सॉल्व दिस क्वांटिटी 9/5 इनटू डिग्री सेल्सियस. ये पहले सॉल्व करना पड़ेगा, फिर 32 उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा. दिस इज द फार्मूला. तो दिस इज डिग्री फ़ारेनहाइट. अगर आपके पास डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, जैसा मैंने बताया कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है 36 डिग्री सेल्सियस है, तो 36 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे हम पुट करते हैं. तो 9/5 into 36 degree Celsius plus 32 करेंगे तो we'll get a temperature in Fahrenheit. That will come to 98 degree Fahrenheit almost. आप देखिए कैलकुलेट करके कर सकते हो. This is the conversion. तो ये फॉर्मूला है which has been given
डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग थोड़ा शिफ्टिंग भी कर सकते हैं इधर उधर, तो दोनों भी आपके लिए पॉसिबल हो सकता है इस तरीके से। सो वी कैन हैव लाइक दिस वन, क्लियर विद दिस? तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 into डिग्री सेल्सियस प्लस 32 इज द फार्मूला टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट। और दूसरा फार्मूला होता है दैट इज टेम्परेचर इन केल्विन। देखिए टेम्परेचर इन केल्विन, T in Kelvin is equal to degree temperature in degree Celsius. Okay, temperature in degree Celsius plus 273.50 ऐसा फैक्टर है। तो हमारे पास हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं या फिर वाटर की बात करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस हम अच्छी तरह जानते हैं। अभी इस 100 डिग्री सेल्सियस को हम यहाँ पे लेते हैं, दिस इज 100 डिग्री सेल्सियस व्हिच इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और उसे केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो 100 डिग्री सेल्सियस के अंदर 273.15 केल्विन ऐड करेंगे, तो इट बिकम्स, यू कैन से 373.15 केल्विन। दिस इज नाउ टेम्परेचर इन केल्विन। सो दिस इज द टेम्परेचर व्हिच इज इन डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो था, दिस टेम्परेचर इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस था। तो which is the boiling point of water? 100 डिग्री सेल्सियस is the boiling point of water. We have converted it to Kelvin. उसके अंदर जस्ट 273 फैक्टर ऐड करना है। अब ये 273 क्यों ऐड करना है? ये कोई लकी नंबर है? नहीं है। दिस हैज बीन साइंटिफिकली प्रूवन कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड केल्विन कांस्टेंट है वो हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर नाम के चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे कि व्हाई इट इज 273.15। दिस इज अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। चार्ल्स नाम का एक साइंटिस्ट है और उसके लॉ के हिसाब से ये आ जाता है। सो इन दैट सेंस ये 273 फैक्टर इज अ कांस्टेंट गिवन बाय चार्ल्स लॉ, और वहां पे केल्विन फैक्टर है वो ऐड करेंगे तब मिल जाता है। So these are the two formulas in temperature using which we can convert temperature in degree Celsius to Fahrenheit and temperature in degree Celsius to Kelvin, isn't it? तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हो। तो keep in mind this formula। जिन लोगों को ये चैप्टर पहले एग्जामिनेशन में आता है, इसके ऊपर 2 मार्क का न्यूमेरिकल गारंटी के साथ आपके एग्जाम में आना ही आना है। ध्यान रखिए, आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में जो भी एग्जाम होगा 11 का, उसके अंदर जिनको ये चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री है, उनको ये फॉर्मूला नहीं तो ये फॉर्मूला, दोनों में से एक फॉर्मूला पे 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। दैट हैपेंस। सो दिस इज द फॉर्मूला। सो कीप इन माइंड कि दिस इज द टेम्परेचर, सो दिस इज द प्रॉपर्टी। सो इट्स डन नाउ। वी हैव सीन द प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हिच आर मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेस, दैट इज व्हाट वी आर सीइंग। तो ये हमारे लिए शायद हो जाता है। सो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है। क्लियर विद दिस? सो ये measurable physical properties over now. Now we have to start with next topic, next concept called as the laws of chemical combinations. So let's know laws of chemical combinations, and hope so you don't have any difficulties or problem with this one. So keep it in mind. So then, laws of chemical combination. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन नया कॉन्सेप्ट है, अलग कॉन्सेप्ट है। इस चैप्टर की खासियत ये है, हर टाइम अलग अलग नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता जाएगा और बहुत ही बढ़िया और मस्त होगा। और ये तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि इंसान की एक खासियत है, हम पैदाइशी साइंटिस्ट होते हैं। डू यू बिलीव दैट कि हम पैदाइशी साइंटिस्ट होते हैं? हमें लगता है कि साइंटिस्ट बहुत टैलेंटेड होते हैं और वी कांट बी अ साइंटिस्ट लाइक दैट। कभी कभी इन्फिनिटी हमारे दिमाग में होती है, बट मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि हर इंसान पैदाइशी साइंटिस्ट होता है। आप किसी, अभी आप तो बच्चों से बड़े हो चुके हो, तो आप दूसरों को ऑब्जर्व कर सकते हो। आपकी खुद की यादें इतनी रहेंगी छोटे बचपन की, लेकिन आप कोई भी बच्चा देखो, किसी भी बच्चों को देखेंगे तो हर बच्चा कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते आपको दिखाई देगा। एकदम छोटा होता है, रेंगता हुआ बच्चा भी आप देखते हो जो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता, वो चलते चलते अगर जाएगा कहीं पे कुछ उसको पड़ा दिखाई दे, वो देखेगा कि व्हाट इज दिस, और ऑब्जर्व करेगा ठीक से, व्हाट इज दिस, ये क्या है, कैसा है, ही वांट्स टू नो। अभी हम बड़े होने के बाद हमें पता है ये पेन है, लेकिन छोटे बच्चे के हाथ में देगा तो 4 बार घुमा के देखेगा व्हाट इज दिस एक्चुअली। ये एक नेचर है, दैट इज अ नेचुरल, है ना। और इसीलिए हमारे दिमाग के अंदर भी कई सारे सवाल आते हैं, कई सवाल आते हैं ना। जैसे कभी आपके दिमाग में आया कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं ऐसा ही क्यों हूँ, है ना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और बहुत बार तो साइकोलॉजिकली ऐसा होता है कि दुनिया के सबसे मतलब अनलकी पर्सन हमें लगता है कि मैं ही हूँ, मेरे साथ ही बहुत दुनिया में बहुत कुछ बुरा होता है। नॉट फॉर एवरीवन, इट इज नॉट फॉर एवरीवन, मैक्सिमम टाइम। द रीजन बिहाइंड दैट कि थिंकिंग हमारा थोड़ा सा उस टाइप का होता है। और बचपन से एक प्रॉब्लम हो चुका है हमारे यहाँ पे
बच्चों का सवाल पूछना एक नेचुरल टेंडेंसी है, हमारा भी सवाल लाना एक नेचुरल टेंडेंसी है। तो हमें सवाल आते हैं ना कि हम क्यों है, दुनिया ऐसा क्यों है, दुनिया में ऐसा ही क्यों होता है, ये चीजें ऐसी क्यों होती है, ऐसे कई सारे सवाल हमारे दिमाग में होते हैं जिसके आंसर ढूंढने की कोशिश नहीं करते हम लोग। और जो इसके आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं वही साइंटिस्ट बनता है। इमेजिन कीजिए कि वो जो एप्पल गिरा था, न्यूटन वहां पे बैठा था और उसके यहाँ पे एप्पल गिर गया और उसने फाइंड आउट किया कि एप्पल क्यों गिरा, एंड ही डिस्कवर्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ऑल, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन एप्पल हैज फॉल डाउन। ये कॉन्सेप्ट जाना माना है, आप जानते हो। इमेजिन कीजिए कि उसके बदले हम थे पेड़ के नीचे, तो पॉसिबिलिटी ये थी कि एप्पल क्यों गिरा सवाल तो आता था, कैसे गिरा सवाल तो आता था, लेकिन आंसर कॉमन ये था। अब हो सकता था, होता है, ये एप्पल सिर्फ मेरे लिए ही गिरा, दैट्स ऑल, इट्स माइन, दूसरे किसी को दूंगा नहीं। अगर दूसरा कोई होगा तो उसके साथ झगड़ा होगा या थोड़ा सा शेयरिंग हो सकता है, लाइक दैट। दिस इज द नॉर्मल थिंग, नॉर्मल पीपल होते हैं हम लोग, और इसलिए हम लोग ज्यादा क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश नहीं करते। बट बचपन से हम लोगों की सवाल पूछने की आदत होती है और वैसी बनी रहनी चाहिए, और हमें जो सवाल आते हैं उसके आंसर ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। देन विल रीच टू द कॉज ऑफ द फिनोमेना, विल फाइंड आउट समथिंग, जैसे कि दूसरे लोगों ने ढूंढा है। ये टॉपिक उसी के साथ जुड़ा हुआ है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। हमारे दिमाग में ये होता है कि दुनिया में कैसे भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, कुछ भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, इट्स नेवर हैपेंस। केमिकल रिएक्शन कैसे भी नहीं होते हैं, वो इंसान के जैसा नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल। रिएक्शंस आर प्रिडिक्टेबल, reactions are governed by some certain laws and some certain rules। कैसे भी कुछ भी रिएक्शंस नहीं होता है, या देयर आर कुछ पॉसिबिलिटी जरूर होती है वहां पे, कुछ पॉसिबिलिटी जरूर होती है वहां पे, कि जिस पॉसिबिलिटी के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शंस थोड़ा सा अलग होने के चांसेस तो होते हैं वैसे। बट अगर आप हर रिएक्शन को बारीकी से देखते हो तो एवरी रिएक्शन इज गवर्न बाय सम सर्टेन लॉज, रूल्स, एंड हियर इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हिच these rules are, what are the rules by which all these reactions are governed, all these reactions are occurring। ठीक है, कुछ भी नहीं, हमारा नेचर होता है, हम कुछ भी कैसे भी कुछ भी केमिकल डाल के कुछ भी कर देंगे। साइंटिस्ट ऐसा नहीं करते ना कि कुछ भी केमिकल लो, कौन सा भी केमिकल कितना भी डालो और देखो क्या होता है। काफी सारे एक्सप्लोजन होंगे, काफी सारे रिएक्शंस गंदे होंगे, या साइंटिस्ट मारेंगे। सो दैट्स व्हाई ऐसा नहीं करते, साइंटिस्ट काफी केयरफुली करते हैं सारी चीजें, और देखते सारे बेसिक लॉज देखते हैं, रूल्स देखते हैं, उसके हिसाब से एवरीथिंग गवर्न होता है। सो लेट्स मूव टू दिस लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देयर आर 4 to 5 laws what we are going to discuss under this head। So number 1, that is you can say law of conservation of mass, law of conservation of mass, law of conservation of mass बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। शायद आप भी जानते हो। मैं एक एग्जांपल के साथ इस लॉ को समझाना चाहूंगा आपको कि C+O2 क्या मिलेगा, C+O2 विल गेट इट CO2, CO2 हम लोग को मिल जाएगा। कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज अ सिंपल रिएक्शन। हम अगर वेट के फॉर्म में बात करते हैं तो कार्बन हैज 12 ग्राम वेट, इस कार्बन का 12 ग्राम वेट होता है, कार्बन के एटम का वेट 12 ग्राम होता है, फिक्स है। ऑक्सीजन का वेट होता है 16 ग्राम, लेकिन यहाँ पे 2 है तो 16 टू 32, तो यहाँ पे जो वेट होगा दिस इज 32 ग्राम। तो बिग लेना भैया, कार्बन का वेट है 12 ग्राम, ऑक्सीजन का वेट है 32 ग्राम इस रिएक्शन के अंदर। तो कुल मिला के कितना होता है, ये कुल मिला के कितना होता है 12 + 32 इट इज 44 ग्राम। तो कार्बन और ऑक्सीजन का कुल मिला के वेट होता है 44 ग्राम। इस तरफ देखते हैं हम लोग, दिस इज CO2, इसके अंदर भी इस कार्बन का है 12 और ऑक्सीजन का है 32, अगेन एक कुल मिला के होता है 44 ग्राम, ये होता है। सो अगर हम इसे रिएक्शंस मानते हैं, रिएक्शन समझते हैं, तो दीज आर द रिएक्टेंट एंड दिस इज द प्रोडक्ट। ये रिएक्शन ही है, एरो के पहले की जो होते हैं सारे रिएक्टेंट होते हैं और एरो के बाद आगे जो होते हैं सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। मतलब दीज आर द 2 सब्सटेंसेस जो रिएक्ट हो रहे हैं, और रिएक्ट होने के बाद तीसरा सब्सटेंस तैयार हो रहा है जिसे प्रोडक्ट कहते हैं। सो प्रोडक्ट इज फॉर्म हियर। सो दिस इज द रिएक्शन हैपेंस। सो इन दिस रिएक्शन कार्बन reacts with oxygen to form carbon dioxide, this reaction is done। now reactant के अंदर कार्बन का वेट है 12 ग्राम, ऑक्सीजन का वेट है 32 ग्राम, दोनों का मिला के कुल वेट होता है 44 ग्राम, और इस प्रोडक्ट का वेट भी है 44 ग्राम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, when reaction occurs, during this reaction mass is neither created nor destroyed।
जितना रिएक्टेंट का मास था उतना ही मास प्रोडक्ट का है, मतलब मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, नया मास तैयार नहीं हुआ ना मास डिस्ट्रॉय हुआ, जितना मास रिएक्टेंट का था उतना ही मास प्रोडक्ट का है। सो मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास उतना ही बना है। So this is called as a law of conservation of mass. That's what we can say here. This is the first law, laws of chemical combination. During chemical combination, mass is neither created nor lost, and this is called as a law of conservation of mass. ठीक है, काफी अच्छा लॉ है, इजी भी है, मस्त भी लगता है, बट अगर बारीक से देखते हैं तो हर चीज ऐसी नहीं है। ओके, आपके बुक में नहीं है, मतलब देयर इज अ लूपहोल फॉर दिस लॉ, है ना। दुनिया में हर चीज का कहीं ना कहीं लूपहोल है, कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है, कहीं ना कहीं डीमेरिट है, एक का दूसरा तो पॉइंट है। तो उसी तरीके से इस रिएक्शन में काफी अच्छा है कि ये रिएक्शन यही कहता है कि ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ना मास तैयार हो चुका है ना मास डिस्ट्रॉय हो चुका है, जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास प्रोडक्ट का है, लॉ बराबर कहता है। लेकिन आइंस्टाइन नाम के साइंटिस्ट के दिमाग में एक सवाल आया। आइंस्टाइन, जानते हो आइंस्टाइन काफी खतरनाक साइंटिस्ट था, काफी जीनियस साइंटिस्ट था, और आइंस्टाइन के दिमाग में एक सवाल आया कि हाउ इट हैपेंस, हाउ इट्स पॉसिबल, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, हाउ इट्स पॉसिबल। देन देयर आर मेनी रिएक्शंस इन व्हिच हीट इज इवॉल्व्ड और हीट इज एब्सॉर्ब्ड। रिएक्शन के टाइप होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। कई सारे रिएक्शन ऐसे जिसमें हीट इवॉल्व होता है, और कई सारे रिएक्शन ऐसे जिनमें हीट एब्सॉर्ब होता है। तो जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होता है वो हीट आया कहां से, और जिस रिएक्शन के अंदर हीट एब्सॉर्ब हुआ वो गया कहां, क्योंकि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो रिएक्शन के अंदर हीट कहां से आया, इफ इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट एब्सॉर्ब होता है वो कहां गया, है ना। ये थोड़ी बच्चे जैसा है कि ये पेन देखो ऐसा करके गायब हो गया, पेन किधर है, पेन, नो पेन, मेरे हाथ में पेन नहीं है, ऐसा नहीं है। जो हीट रिलीज हुआ वो कहां चला गया, और जो हीट एब्सॉर्ब हुआ वो कहां चला गया, दैट वाज द बेसिक क्वेश्चन आस्क्ड बाय Einstein scientist, and he tried to find out answer for this one, and he go to the root and he put forth some law that is called the mass defect, and because of which देखिए एक छोटे से सवाल के कारण एटम बम का निर्माण हुआ, बिकॉज उसने ये सवाल किया और ही ट्राई टू फाइंड आउट, और उसने ये मास डिफेक्ट नाम का कॉन्सेप्ट देखा, और मास डिफेक्ट नाम के कॉन्सेप्ट के साथ he reached to the that mass defect concept, nuclear reactions, and finally हम लोगों को न्यूक्लियर एटम बम की निर्मित और जो तैयारी होती है एटम बम जिस तरीके से बनाया जाता है वहां तक आइंस्टाइन पहुंच गए, बिकॉज ऑफ एक सवाल के कारण कि रिएक्शन में ऐसा कैसे होता है कि हीट जो रिलीज हुआ कहाँ गया और हीट जो एब्जॉर्ब कहाँ हुआ। तो कई सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर देयर इज अ मास डिफेक्ट, रिएक्शन का और प्रोडक्ट का मास मैच नहीं होता है, माइनर चेंज होता है बिकॉज ऑफ हीट इज इवॉल्व या फिर हीट इज एब्सॉर्ब, ये उसका लूपहोल है। बट फिलहाल में इस लॉ के अंदर इतना ही बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और खास करके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन is called as a law of conservation of mass. According to Einstein, there are some loopholes, defects, mass defect is there, but ये उसके loopholes है, इस law के loopholes है, वो यहाँ पे अपने बुक में नहीं है, हम सिर्फ law याद रखेंगे, उसका एग्जांपल याद रखेंगे। Do you have this? Hope so everyone got this. This is called a law of conservation of mass. So let's move to the second law. What we are going to discuss here, second law for this one. So second law is law of definite proportion. Law of definite proportion. Law of definite proportion. Say, take an example of water. Water का example क्या है? Hydrogen reacts with oxygen to form H2O. ये तय होता है. So hydrogen reacts with oxygen to form H2O. ये reaction हम जानते हैं, अच्छी तरह reaction जानते हैं. Now सवाल क्या है कि water अगर तैयार होना है, water तैयार होना है, तो hydrogen और weight देखेंगे तो 2 ग्राम, ऑक्सीजन का वेट देखेंगे तो 16 ग्राम और इसका वेट देखेंगे तो 18 ग्राम, वही है, मतलब 16 प्लस की बात करते हैं 18 ग्राम। तो वेट के फॉर्मेट में वाटर हमेशा 18 ग्राम होता है, वाटर का एक मॉलिक्यूल हमेशा 18 ग्राम होता है, और वाटर हमेशा दो ही एलिमेंट्स का बनता है, और कौन से एलिमेंट्स है वो? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। डज इट हैपन? वी हैव सीन नेवर एनीवेयर दैट इज वाटर इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन? नेवर हैपेंस. Water is always made up of hydrogen and oxygen.
हाँ, जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन इकट्ठा के पानी बने, एसिड एंड बेस रिएक्ट होने के बाद भी सॉल्ट एंड वाटर तैयार होता है। हम जानते हैं न्यूक्लियेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर, उसके अंदर भी वाटर तैयार, उस रिएक्शन को लिखता हूँ, जैसे कि HCl प्लस NaOH गिव्स, ये Cl H के साथ Ni के साथ चला जाएगा और H2 चला जाएगा, तो here NaCl plus H2O, this is water। ठीक है, सोर्स हियर वाटर ही बना है, लेकिन वाटर बना हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, यहाँ पर भी वाटर बना है, लेकिन वाटर बना एसिड और बेस से, ठीक है। तो वाटर कैसे भी बने, वाटर ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड दैट फिक्स वेट, कितना वेट है 16:2, इसके अंदर भी देखिए वेट कितना रहेगा 18 ग्राम, that has to be 16 into 18, so this will be the weight for this one। so इस तरीके से अगर हम बात करते हैं रिएक्शन देखते हैं, वो any compound always contains a fixed element in a definite proportion by the weight, and this is called the law of definite proportion। definite proportion 16:2 इतना ही आएगा। वाटर के केस में, कार्बन डाइऑक्साइड केस में अलग है। हम देयर आर मेनी एग्जांपल्स वी कैन टेक इट, वाटर कॉमन एग्जांपल इसलिए मैंने दिया, आप किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग NaOH की बात करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन, उनका भी वेट फिक्स होता है। उसी तरीके से वाटर अगर बनना है तो उसके अंदर 2 हाइड्रोजन के आइटम, 1 ऑक्सीजन के आइटम, वेट के फॉर्मेट में बात करेंगे तो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। एलिमेंट भी फिक्स होते हैं, उनका वेट भी फिक्स होता है। तो फिक्स एलिमेंट in definite proportion, and this is called the law of definite proportion। so law of definite proportion states that any compound, water is being compound, any compound always contains a fixed element in a definite proportion by the weight, and this phenomena is known as, you can see here, law of definite proportion। clear with this? so दो लॉ हो गया हमारा। पहला लॉ कौन सा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ कौन सा है हमारा, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। दोनों लॉ आपको लर्न करने। पहला लॉ क्या कहता है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। और दूसरा लॉ क्या कहता है, एनी कंपाउंड always contains a fixed element in a definite proportion by the weight, is called the law of definite proportion। fixed element in a definite proportion irrespective of source or method of preparation। आप वाटर ऐसे तैयार करो या वाटर ऐसे तैयार करो और किसी तीसरे सोर्स से वाटर तैयार करो, वाटर हमेशा H2O ही होगा। so this is what we can say, this is called the law of definite proportion। any compound always contain a fixed element in a definite proportion by the weight, that is called the law of definite proportion। this is what we can say second law। now let's move to third law, तीसरे लॉ की तरफ मूव करते हैं। okay, so we are here third law, called the law of multiple proportion। law of multiple proportion, law of multiple proportion, ये भी एक खास वाला लॉ है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मैं पहले उसके एग्जांपल देता हूँ, फिर उसके बाद लॉ का स्टेटमेंट बताऊंगा, क्योंकि एग्जांपल के साथ वो स्टेटमेंट अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। सो अब देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस CO, ये रिएक्शन भी आपने शायद स्कूल लाइफ में देखा हुआ है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड, रिएक्शन हमेशा इस तरीके से एरो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड CO। दूसरी तरफ C प्लस O2 प्रोड्यूसेस CO2। ये अब देखिए दोनों केस में डिफरेंस है। कार्बन ऑक्सीजन रिएक्ट होकर कार्बन मोनोऑक्साइड तैयार करते हैं, जो डिफरेंट सब्सटेंस है कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड तैयार करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक अलग सब्सटेंस है, आप दोनों में कंपेयर करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हम हमारे ब्रीदिंग में छोड़ते हैं, जब ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जब हम बर्निंग करते हैं उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर आ जाता है, ठीक है। पर कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर पॉइजनस गैस देन द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत पॉइजनस गैस है। हम ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पे भी क्या है, कार्बन ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन है, फर्क बस इतना है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे ज्यादा है और एक ऑक्सीजन यहाँ पे कम है। दिस क्वांटिटेटिव चेंज मेक अ बिग डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज। बहुत चेंज होता है, क्वांटिटी चेंजेस इनटू क्वालिटी। इसके अंदर ऑक्सीजन का एक एटम बढ़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड बना, और एक कम होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना। कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर पॉइजनस देन कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू सब्सटेंसेस। फिलहाल हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं बात, ये है दैट व्हाट वी कैन सी हियर।
here carbon plus oxygen produces carbon monoxide, and carbon plus oxygen, carbon plus oxygen produces carbon dioxide. Got it? So just okay, sorry. So in that sense, you can say carbon plus oxygen produces carbon monoxide and carbon plus oxygen produces carbon dioxide. अभी इसमें देखिए हमें जो एग्जांपल देखना है, this is law of multiple proportion. Suppose this is element A and this is element B. ऐसा मानते हैं दोनों रिएक्शन में एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2. पहले एग्जांपल में एलिमेंट्स कौन से हैं? कार्बन ऑक्सीजन. दूसरे एग्जांपल में एलिमेंट्स कौन से हैं? कार्बन ऑक्सीजन. एलिमेंट सेम है, यहाँ पे भी कार्बन ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी कार्बन ऑक्सीजन, एलिमेंट सेम है. डिफरेंस किस बात का? डिफरेंस देखिए अगर प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो 1:1 है और यहाँ पे 1:2 है, 1:2 रेशो है. तो यहाँ पे 1:1 और यहाँ पे 1:2, मतलब कार्बन के एक एटम के साथ ऑक्सीजन का एक एटम आया हुआ है और यहाँ पे कार्बन के एक एटम के साथ ऑक्सीजन के 2 एटम आ चुके हैं. सो रेशो इज 1:1, 1:2. तो दोनों एग्जांपल में कार्बन का प्रोपोर्शन फिक्स है 1:1. बदला किसका है? ऑक्सीजन का बदला है. बदला किसका? ऑक्सीजन का बदला है. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि when two elements chemically combine with each other forming two or more different compounds. यहाँ पे तो 2 की है, 2 से ज्यादा भी तैयार हो सकते हैं. हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट होकर 6-7 डिफरेंट कंपाउंड्स तैयार करते हैं. होता नाइट्रोजन ऑक्सीजन 2 ही एलिमेंट है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट वो कितने कंपाउंड तैयार करते हैं? 6 to 7 मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स दे कैन फॉर्म. तो कितने भी तैयार कर सकते हैं. सो दिस व्हाट वी कैन से. तो व्हेन टू एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन विद ईच अदर forming 2 or more different compounds, then the element B, क्योंकि C का या A का हम बात करते हैं तो उसका प्रोपोर्शन सेम है. एलिमेंट B is in a whole number, in a whole मतलब रेशियो इज इन अ होल नंबर 1:2, 1:2, मतलब डबल हो गया, रेशियो में बदल गया. दैट इज इट इज इन अ होल नंबर, उतने में बदल जाता है. दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. सो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन states that whenever two elements chemically combine with each other, forming 2 or more compounds in a different proportion by their weight, then the masses of these elements bear a simple whole number ratio. Mass मतलब यहाँ पे मास की बात करते तो 16 मास है, यहाँ पे मास करते तो 32 मास है, मतलब डबल हो गया ना. इट इज इन होल नंबर्स, मल्टीपल्स में आता है. दैट इज कॉल्ड इट इज इन होल नंबर्स. दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन समझने में आसान है, लर्न करने में थोड़ा सा ट्रिकी स्टेटमेंट लगता है उसका. तो दैट्स व्हाई थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा आपको. अंडरस्टैंडिंग तो उसके साथ होता है कि कंपाउंड वही है, अलग अलग प्रोपोर्शन में रिएक्ट होकर अलग अलग कंपाउंड तैयार करते हैं. तो भले ही पहला एलिमेंट उसके अंदर फिक्स मास रहे लेकिन दूसरे एलिमेंट का मास बदलता है. दैट इज इन होल नंबर. बस इतना ही उसका अंडरस्टैंडिंग है. सो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या? मल्टीपल नाम से पता चलता है. मल्टीपल प्रोपोर्शंस मतलब 2 or more elements chemically combine to form 2 or more compounds. Then masses of elements bear a simple whole number ratio. Masses of element bear a simple whole number ratio 1:2. कोई तो एक फिक्स रहेगा, दूसरा अपना मास बदल जाएगा. This is bear a simple whole number ratio. This is called a law of multiple proportion. ठीक है. And the last law is a Gay-Lussac's law. Last का law Gay-Lussac's law. So fourth law is a Gay-Lussac's. Is the name of scientist, and this law, Gay-Lussac is the name of scientist who has proved very important milestone in the development of chemistry. मतलब कि Gay-Lussac's law has proved a very important milestone in the development of chemistry. मानो अगर ये लॉ नहीं आता था तो केमिस्ट्री के डेवलपमेंट के अंदर का एक स्टेप्स मिसिंग रहता था, कि जो इसने कवर किया. बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन लेड किया इस लॉ ने. Gay-Lussac's law क्या है? ये लॉ सबसे पहली बात है कि Gay-Lussac's law is applicable to only gaseous substances. It is not applicable to solid and liquids. मतलब जिस टाइम वो रखा गया है उस टाइम है. So in that sense you can say this law is applicable to only gaseous substances. जो substances gaseous form है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उनके लिए लॉ लागू है. जो gaseous फॉर्मेट नहीं उनके लिए लागू नहीं होता है. That's why वो लॉ के अंदर उसी तरीके से आता है. अभी Gay-Lussac's बहुत सिंपल लॉ है, बट उसका पहले एग्जांपल देता हूँ और फिर उसके बाद हम लोग उसका लॉ भी स्टेट करेंगे. एग्जाम्पल की बात करते हैं. हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन
प्रोड्यूसेस HCl, है ना ऐसा, बट हम लिखते कैसे, H2 plus Cl2 produces twice HCl, ऐसा होता है। तो बात करेंगे हम लोग 1:1:2। अब ये रेशियो है, हम लोग इसी चैप्टर के अंदर सबसे लास्ट में स्टोशियोमेट्री नाम का एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। स्टोशियोमेट्री का मतलब ये है कि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। अगर हमारे घर में चाय भी बनाना है तो सब क्वांटिटी प्रॉपर पुट करनी पड़ती है, मतलब कितना टी पाउडर, कितना शुगर उसके अंदर पुट करना है, ये डिसाइडेड होता है। वो कम ज्यादा होगा तो उतना प्रॉपर टेस्ट नहीं आएगा। उसी तरीके से किसी भी रिएक्शन के अंदर इसके आगे ये सिंबल ऑफ एलिमेंट्स है, दीस आर द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। सिंबल ऑफ एलिमेंट्स के आगे कुछ नहीं, मतलब 1 होता है। जैसे मैथ्स में आप लोग x मानते हो तो x इज ऑलवेज 1x ना, x के आगे हमेशा 1 होता ही है, तो 1x हम कहते नहीं 1x, इट इज एज लाइक एन x। तो उसी तरीके से यहाँ पे 1H2 है, यहाँ पे 1Cl2 है, यहाँ पे 1 नहीं कर सकते, यहाँ पे 2 है ऑलरेडी। सो जहाँ पे लिखा है वो है, जहाँ पे नहीं वहां पे 1 कंसिडर किया जाता है। इन दैट सेंस H2 plus Cl2 produces twice HCl। तो इसके आगे कुछ नहीं, मतलब उसका 1 है तो इसका 1 है, और वो मोल के फॉर्मेट में स्टडी किया जाता है। दिस इज कंसिडर्ड एज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ क्लोरीन एंड दिस इज 2 मोल्स ऑफ HCl। स्टोशियोमेट्री नाम के टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सो 1 mole of hydrogen reacts with 1 mole of chlorine to produce 2 moles of HCl। या आप ऐसा भी बोल सकते हो 1 molecule of hydrogen reacts with 1 molecule of chlorine to produce 2 molecules of HCl। Yeah, so this is the quantitative relationship between reactant and product। Okay, अब देखो अगर मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन मतलब HCl को मुझे अगर 1 लीटर तैयार करना है, 1 लीटर, तो क्या चेंज करना पड़ेगा? हम जानते हैं इसका 1 लेते हैं, इसका 1 लेते हैं, तो उसके डबल ये बनता है। तो इसका अगर मुझे 1 लीटर करना है तो इसका हाफ लेना पड़ेगा, इसका भी हाफ लेना पड़ेगा। इज इट क्लियर? सो हाफ ऑफ हाइड्रोजन, हाफ ऑफ क्लोरीन टू प्रोड्यूस 1 ऑफ HCl। अगर मुझे इसके 4 तैयार करने हैं, 4 मोल्स, तो क्या करना पड़ेगा देन? आई शुड टेक 2 हियर, आई शुड टेक 2 हियर। कि हम इसका जितना क्वांटिटी लेंगे उसका डबल ये क्वांटिटी होता है। ये हाफ लेंगे तो 1 होता है, ये 2 लेंगे तो 4 होगा, ये 1 लेंगे तो 2 लेंगे, 3 लेंगे तो यहाँ पे 6 होगा। This is the quantitative relationship between them, and this is, you can say, Gay-Lussac's law। This is Gay-Lussac's law। तो Gay-Lussac's law क्या कहता है कि whenever gaseous reactant, ये gaseous reactant है क्योंकि मैंने कहा कि ये गैस को ही एप्लीकेबल होता है, gaseous substance को ही एप्लीकेबल होता है। So whenever gaseous reactant react to form gaseous product, whenever gaseous reactant react to form gaseous product, then volume of reactant and product bear a simple whole number ratio। volume of product bear a simple whole number ratio। simple whole number ratio मेंटेन करता है 2:2:4, 2:2:4 इतना उसके अंदर मिल जाता है। All of it clear with this? So this is what we can say, this is you can say here law, Gay-Lussac's law। अभी ये लॉ थोड़े से maybe you feel a bit difficult, but मुझे नहीं लगता उतना डिफिकल्ट है, समझेंगे तो बहुत इजी है। बस यहाँ पे स्टेटमेंट भी आते हैं और अंडरस्टैंडिंग भी आता है, दोनों आते हैं। और दोनों उस तरीके से हम समझते हैं तो फिर ज्यादा मुश्किल और ज्यादा प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगी उसके अंदर। सो दैट इज वी कैन से ये इसके अंदर आ जाता है। तो क्लियर विद दिस? सो व्हाट वी कैन सी हियर, दिस इज Gay-Lussac's law, and according to this Gay-Lussac's law, whenever gaseous reactant react to form a gaseous product, then the reactant and product bear a simple whole number ratio। This is called as Gay-Lussac's law। So these are the 4 laws what of chemical formation what we discuss here। Or fifth law is there also we have to discuss, that's called as Avogadro's law। लेकिन होप सो कि ऑल दिस लॉज यू गॉट इट। वंस अगेन एक बार रिपीट करते हैं कौन से लॉ देखे हैं। सबसे पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहता है ये? ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहता है एनी कंपाउंड ऑलवेज कंटेन अ फिक्स्ड एलिमेंट इन अ डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय देयर वेट। एनी कंपाउंड ऑलवेज कंटेन अ फिक्स्ड एलिमेंट इन अ डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय देयर वेट, एंड दैट इज यू कैन से लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। What is law of multiple proportion? Whenever 2 elements chemically combine with forming 2 or more compounds, then the masses of this reacting element bear a simple whole number ratio। Simple whole number ratio. And here, Gay-Lussac's law, which has proved to be a very milestone in the development of chemistry, a very important law, this states that whenever gaseous reactant react to form a gaseous product, reactant भी gas चाहिए, product भी gas चाहिए। So whenever gaseous reactant react to form a gaseous product, then the volume of reactant and product, volume, because gases है तो volume के फॉर्मेट में होंगे, मास के फॉर्मेट। यहाँ पे हम लोग मास यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम यूज करते हैं। तो volume of reactant and product bear a simple whole number ratio,
and this phenomena is called as Gay-Lussac's law of combining volume of gases भी कहा जाता है. Gay-Lussac's law of combining volume of gases, and according to this law, gases react and react to form gaseous product. Then the volume of reactant and product bear a simple whole number ratio, provided volumes are measured under similar conditions of temperature and pressure. इनके volume similar conditions of temperature and pressure पे हमें क्या करने पड़ते हैं, measure करने पड़ते हैं. This is what we can say. So this is what we have seen today. तो आज हमने दो major concepts डिस्कस किए. सबसे पहले जो concept हमने डिस्कस किया, that is nothing but you can say physical properties or measurable physical properties of the substances. Number one हमने डिस्कस किया, that is called as mass versus weight की हमने बात की, and mass is measured in kilogram. दूसरी की हमने लेंथ की बात की, लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर. तीसरी बात की हमने वॉल्यूम की, लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर. तीसरी बात की हमने वॉल्यूम की, वॉल्यूम इज मेजर्ड इन मीटर क्यूब. ये सब यूनिट की बात करो, बाकी सारे यूनिट्स होते हैं बहुत सारे. उसके बाद देखा हमने डेंसिटी, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, दैट मींस द यूनिट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब. दैट इज व्हाट वी हैव सीन. उसके बाद देखा हमने टेंपरेचर, टेंपरेचर इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द मैटर. दैट इज व्हाट वी हैव सीन. एंड देयर आर थ्री डिफरेंट स्केल्स, दैट इज डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड degree Kelvin simply, or we can convert them in each other. So degree Fahrenheit is equal to 9/5 into degree Celsius plus 32 is the formula. या फिर temperature in Kelvin is equal to temperature in degree Celsius plus 273.15. ये फैक्टर हम ऐड करते हैं तो हम लोग केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये हमने देखा. फिर उसके बाद देखा हमने laws of chemical combination, and these laws मतलब every reaction is governed by some certain laws. और एग्जाम में ये टॉपिक चैप्टर अगर आपको होता है तो इसमें से एक लॉ तो मिनिमम आ ही जाता है 2 मार्क्स के लिए वापस. तो ये चारों लॉ आपको लर्न करने हैं. इजी है. इसमें से शायद थोड़ा सा ये जो है ना लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है आपको, मेरे ख्याल से तो है नहीं, बट आपको थोड़ा लग सकता है. तो बस उसे थोड़ा ज्यादा लर्निंग पैटर्न अप्लाई करना पड़ेगा. बाकी अंडरस्टैंडिंग के साथ बाकी 3 तो इजी बनते हैं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो बहुत इजी है. मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. यहाँ पे any compound always contain a fixed element in a definite proportion by their mass, irrespective of source of preparation. And this is, whenever two elements chemically combine with each other, then the masses of reacting element bear a simple whole number ratio. And this is, whenever gases react and react from a gaseous product, then the volume of reactant and product bear a simple whole number ratio. This is what we can say here, and this is these are the laws. And tomorrow again we'll come up with some new concepts. We have to discuss Avogadro's law, which is very important. Again, that goes hand in hand with Gay-Lussac's law, and then Mole concept, which is a very important concept. तो कल हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे. Hope so. आज का लेक्चर आपको समझा हुआ है. कल वापस आप लोग थोड़ा सा प्रिपेयर करके आइएगा. कल पता चला कि कुछ बच्चों को थोड़े डाउट्स होते हैं, तो डाउट के लिए हम अलग सेशन देंगे जिसके अंदर 1-to-1 हम लोग बात करेंगे. मतलब आप भी कैमरा के साथ दिख सकते हो, देख सकते हैं हम लोग, तो ज्यादा बेटर रहेगा. क्योंकि ये डिलीवरी के टाइम वन साइडेड डिलीवरी ही करना थोड़ा सा पॉसिबल है. That's right. So see you tomorrow. Thank you very much. और read it or prepare it. Thank you.